استغفار چیلنج کا آج لاسٹ ڈے ہے اور الحمدللہ مجھے یقین بھی نہیں ہو رہا کہ اتنے سارے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اسی لیے میں نے نیکسٹ چیلنج کے لیے بھی 3 ڈیز ہی رکھے ہیں۔ یہ چیلنجز میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے پہلے پہلے ہم توبہ بھی کر لیں، قرآن شریف پڑھنے کے عادی بھی بن جائیں، نمازیں پڑھنے کے عادی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ سے رمضان سے پہلے ہی ہم توبہ کر لیں اور اس والے رمضان کو ہم اسپیشل بنائیں۔ انشاءاللہ رمضان کے لیے اسپیشل ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اس سے پہلے جتنے بھی چیلنجز آ رہے ہیں نا دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آپ ضرور کریں، اور رمضان میں آپ کوئی بھی وظیفے کر رہے ہوں گے نا وہ سب نے اسٹاپ کرنے ہیں اور صرف اللہ کے لیے ہی عبادت کرنی ہے۔ آپ لوگوں کا امشور 41 سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، اور جو 200 صلاۃ الحاجت نفل پڑھ رہے ہیں وہ بھی پوری ہو چکی ہوں گی، بٹ وہ آپ رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور سب نے ایک کلام پاک تو رمضان میں ضرور پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک گیو اوے سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ پرسنلی میسیج کی اور کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو فروری میں یہ گیو اوے آئے گا، اور جتنے بھی 5 جنوری کے بعد میں چیلنجز آپ کو دے رہی ہوں اسی میں سے کویشچنس اور آنسرس ہوں گے، جو صحیح جواب دے گا وہ ونر ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں یا پھر آپ گھر کے بھی کام کریں، ایون کہ کھانا بنانے جائیں، کچھ بھی کریں تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھا کریں، اس سے بہت برکت ہوتی ہے۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیلنج شیئر کرنے لگی ہوں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سے استغفار چیلنج بہت سارے لوگوں نے کمپلیٹ بھی کر لیا ہے، اور لاسٹ ڈے ہے آج، تو بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں۔ اور جن بہن اور بھائیوں نے آج یہ چیلنج سٹارٹ کیا ہے، کل یہ چیلنج سٹارٹ کیا ہے، وہ مجھے ریگولر اپڈیٹ دیتے رہیں۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم پھر سے ایک اسپیشل دعا کروائیں گے سب کے لیے جنہوں نے بھی اس استغفار میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جن لوگوں نے آج کیا ہے پلیز وہ کنٹینیو رکھیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے کنٹینیو تو 11 کے یعنی کہ 11,000 پڑھ لیں اور پھر دعا کر لیں۔ اور دیکھیں ایک بات اور بتا دیتی ہوں، استغفار ہو یا درود پاک، جب تک آپ دل سے نہیں پڑھیں گے نا تو کاؤنٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استغفار جب تک دل سے نہ کیا جائے، جب تک سچی توبہ کے ساتھ نہ کیا جائے، تب تک استغفار قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں تو ساتھ میں سچی توبہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے گناہ ہیں، جتنے بھی میں نے ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے آپ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ آپ انہیں معاف کر دیں اور مجھے بھی معاف کر دیں، اور میرے اس استغفار کو قبول فرمائیں۔ تبھی آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے، تبھی بہت سارے لوگوں کی میریکل سٹوریز آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ اور جتنے بھی چیلنجز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نماز بالکل مت چھوڑیں۔ سب سے ضروری ہے نماز، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں آپ فرض سے سٹارٹ کر لیں کہ اگر آپ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ فرض نمازوں سے سٹارٹ کریں۔ فرض کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے جب آپ کو لگے کہ آپ 5 ٹائم کے فرض پڑھنے لگے ہیں، ساتھ میں سنتیں ایڈ کر دیں، پھر نفل ایڈ کر دیں، اور وطر دیکھیں بالکل واجب ہے، آپ فرض کے ساتھ 3 وطر تو ضرور پڑھیں گے عشاء میں، وہ بالکل بھی نہیں چھوڑنے ہیں، اس کے بنا تو نماز مکمل نہیں ہوگی آپ کی عشاء کی۔ اور آپ دھیرے دھیرے نماز کی کنسسٹنسی کریں، انشاءاللہ میں کہتی ہوں نا آپ کی لائف اس قدر چینج ہو جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور جتنی بھی میں نے میریکل سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ آج تک شیئر کیا، سب بہنوں نے تہجد کے ساتھ 5 وقت کی نماز اور ساتھ میں جو وظائف کرے ہیں تب ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ویسے بھی قبول کرتے ہیں، پر ہم ایسے کیوں کروائیں؟ ہم تو اللہ کو راضی کر کے دعا قبول کروانی ہے نا، تاکہ پوری زندگی اس دعا کا فائدہ اٹھا سکیں جو قبول ہوئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود ابراہیم کا ایک میریکل والا چیلنج شیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کی لائف میں ضرور میریکل ہوگا، ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ضرور آپ کو سکون ملے گا، ضرور آپ کی لائف میں نا چینجز دیکھنے کو ملیں گے صرف 3 ڈیز میں۔ اور میں آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے 4 فائدے بھی بتاؤں گی اور درود پاک کی فضیلت بھی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی دعا کروا دیتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، دعا کیجیے گا کہ میری انگیجمنٹ ٹوٹ گئی لیکن اب میرے ان لوز نے پھر سے انگیجمنٹ کی ہے، 6 منتھ پورے ہونے والے ہیں، پلیز آپ دعا کیجیے گا میرا نکاح میری محبت سے ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کے لیے آپ کا نکاح جلد سے جلد ہو جائے، خیر اور عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ آپ خود بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے صبر کے ساتھ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔
नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दें, मेरा नाम निघत है, अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे और शादी हो जाए, आमीन। अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपका निकाह करवाए। मैं कहती हूँ जितनी भी कुंवारी बहनें हैं, अल्लाह ताला उन सब का जल्द से जल्द निकाह करवाए, वो अपनी घर की हो जाएं, और अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से ज़्यादा बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए ये वाला कमेंट मुझे मेरे सेकंड चैनल पर आया था, लास्ट में आपको दिख भी रहा होगा, सैबी व्लॉग 08। तो मैं इस वीडियो में भी इस कमेंट को इसलिए ऐड कर रही हूँ, जितनी भी मेरी बहनों का दिल टूट चुका है वो इस स्टोरी से कुछ मोटिवेशन ले सकें। ये कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम सलाम, मेरे साथ ये हो चुका है। मैं अपने कज़न से मोहब्बत करती थी बट नमाज नहीं पढ़ती थी। 8 साल पहले उसने मुझे छोड़ दिया, बात बंद कर दी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरी फैमिली में सबको पता था। मेरी अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरे जो 2 भाई हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। सब ने मुझे सँभाला और मैं 5 वक़्त की नमाज़ और तहज्जुद पढ़ने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह भूली तो नहीं हूँ उस इंसान को अभी तक, लेकिन मुझे तहज्जुद और नमाज़ों से इतना सुकून ज़रूर मिल चुका है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन याद तो आती है देखें, लेकिन अल्लाह ताला ने सब्र दे दिया। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, जब आप नमाज़ों से माँगते हैं या तो अल्लाह ताला आपकी दुआएँ कबूल कर लेते हैं, नहीं तो अल्लाह ताला आपको ऐसा सब्र जमील अता करते हैं। आपको याद तो आती है लेकिन आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़, उतना ज़्यादा दुःख नहीं होता, क्योंकि आप अपना रिश्ता अल्लाह से बना लेते हैं। और जो अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह के करीब आ जाता है, उसके लिए इंसान का होना ना होना ज़रूरी नहीं है। जिनके दिल टूट चुके हैं या आप किसी का इंतज़ार करें, आप अल्लाह से माँगें, सब्र के साथ माँगें और अल्लाह सुभान व तआला आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अल्लाह ताला आपको सब्र भी देगा और अल्लाह ताला आपको अपने इतने करीब कर लेगा ना, आपको दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे वीडियो तो कब से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब मेरा ये कि चैलेंज वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैलेंज वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुरूद पाक है क्या। पहले तो आप ये जान लें, दुरूद पाक सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अफजल अमल है, जो हमारे नबी सबको कहते थे कि अगर आप गमगीन हैं, आप परेशान हैं, आप तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, आपके ऊपर कर्ज़ हो गया, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, अटक गई है, तो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह ताला तुम्हारी दुरूद पाक पढ़ने की बरकत की वजह से तुम्हारी तंगी हटा देगा, तुम्हारे गम दूर कर देगा, तुम्हारे लिए आसानियाँ कर देगा। जब कोई इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम दुरूद पाक हमारे नबी पर पेश करते हैं और इस दुरूद पाक में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करे, हम अपनी रहमतें अल्लाह ताला हमारे नबी पर भेजे। तो इसका मतलब ये होता है। और जब आप दुरूद पाक पढ़कर कोई भी दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ रद्द नहीं की जाती, आपकी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। आपको बहुत सारी दुरूद मिल जाएंगी, लेकिन सबसे अफजल दुरूद है दुरूद इब्राहीम। और एक दुरूद ये भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका हुक्म है कि आप जब भी हमारे नबी का नाम सुने तो आपने ये छोटा दुरूद पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक है। और एक और दुरूद है सल्ले अला मोहम्मद, और एक और छोटा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। ये भी दुरूद है, आपको जो भी सही लगे आप वो पढ़ सकते हैं अपनी दुआओं में, चलते फिरते उठते बैठते। जो लोग दुरूद पाक का विर्द करते हैं, और मैं कहती हूँ जो लोग दुरूद पाक का विर्द करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतने खुश होते हैं ना, हद से ज़्यादा। उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमेशा मुतमईन होते हैं। और मैं कहती हूँ कि वो सबसे अलग लोग होते हैं, क्योंकि देखें इस दुरूद पाक का दुनिया में जितना फ़ायदा है ना, उतना ही हमारे मरने के बाद भी है। खैर मैं किसी दिन तफसील से आपको समझाऊंगी। आज मैं आप लोगों के साथ ना दुरूद पाक के पहले 14 फ़ायदे शेयर कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये चैलेंज बताती हूँ कि आपने करना कैसे है। दुरूद पाक पढ़ने के 14 फ़ायदे। नंबर 1, अगर दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूलियत होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ये यूँ कह लें कि दुआ 100% कबूल की जाती है। नंबर 2, हमारे नबी पर जो दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके हिस्से में 10 नेकियां लिख देते हैं। नंबर 3, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 4, फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि इसके हिस्से में इसके ऊपर 70 रहमतें नाजिल करें। नंबर 5, दुरूद पाक पढ़ने वाले के 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। नंबर 6, अल्लाह ताला कहता है जो दुरूद पाक हमारे नबी पर पढ़ता है ना, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है हमारे नबी से, इसलिए कसरत से हमारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करें, चाहे आप छोटा ही क्यों ना पढ़ें। नंबर 7, दुरूद पाक पढ़ने से दिल और ज़िंदगी को तरोताज़गी मिलती है, इसलिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें।
नंबर 8, अगर अज़ान की दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ा जाए, यानी कि जब अज़ान होती है और अज़ान के बाद हम जो अज़ान की दुआ पढ़ते हैं उससे पहले अगर हम दुरूद पाक पढ़ लें तो क़यामत के दिन इंशाल्लाह हमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। नंबर 9, दुरूद पाक कसरत से पढ़ने से सारी परेशानियाँ टल जाती हैं, इसीलिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसका रास्ता नज़र ना आए, और वो दुरूद पाक आप हमारे नबी पर पढ़ा करें, उन पर पेश कर दिया करें, इंशाल्लाह सारी परेशानियाँ सारे गम दूर हो जाएंगे। नंबर 10, जो दुरूद पाक पढ़कर हमारे नबी पर पेश करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उस इंसान की तारीफ करता है। नंबर 11, दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स की उम्र में, रिज़्क में और ये कह लें कि उसके घर में बरकतें आती हैं। आपकी उम्र में भी बरकत होगी, आपके रिज़्क में भी बरकत होगी, आपके घर में हर चीज़ में बरकत होगी, इसीलिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। नंबर 12, जो मुझे आपको सबसे फर्स्ट पे बताना चाहिए था कि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है फरिश्तों को भी और हम सब को भी कि मेरे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करो। नंबर 13, एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें भी नाजिल की जाती हैं। और नंबर 14, जो शख्स जुमेरात और जुमे के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो ये दुरूद पाक हमारे नबी पर पेश की जाती है। तो मैंने आपको दुरूद पाक पढ़ने के 14 फ़ायदे बताए। दुरूद इब्राहीम ये वाली दुरूद है जिसे हम नमाज में भी पढ़ते हैं। नमाज हमारी दुरूद इब्राहीम के बिना मुकम्मल नहीं होती, और दुआ मांगते हुए भी हम दुरूद पढ़ते हैं, तो अब आप समझ लें कि दुरूद में ना इतना नूर है, इतनी शिफा है, इतनी शफाअत है कि जितना हम सोचते हैं ना उससे भी ज़्यादा इसकी फजीलतें हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाएं और डेली दुरूद पाक पढ़ा करें, एटलीस्ट 100 टाइम्स दुरूद इब्राहीम रोज़ पढ़ा करें। चलिए, आज का चैलेंज है, बहुत छोटा सा चैलेंज है और आई एम श्योर सब करेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपने हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहीम की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, सिर्फ एक तस्बीह, यानी कि हर नमाज में एक एक तस्बीह पढ़नी है। ईशा में इंशाल्लाह आप सब की, मेरी, हम सब की 5 तस्बीह मुकम्मल होंगी, और फिर आपने हर तस्बीह पढ़ने के बाद अपनी दुआ करनी है। जो आपका मकसद, जो आपकी दुआ, जो आपकी हाजत कबूल नहीं हो रही अल्लाह के सामने, वो भी रखनी है। और आपने जब दुरूद पाक पढ़ना है तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह, जो भी मैंने दुरूद पाक अभी पढ़ा है, जो भी इसमें कमी हुई है, कोताही हुई है, अल्लाह ताला आप उसे माफ़ करें। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं इस दुरूद पाक को पेश करती हूँ। इस दुरूद पाक का सवाब मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे। इस तरीके से आप सवाब पहुँचाकर दुआ करें, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आपको कुछ भी बताने के लिए तो मैं माज़रत चाहती हूँ, तो आप मुझे इसका सही तरीका बता दें जैसे कि आप सबको पता है। और इंशाल्लाह हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस करेंगे, बहुत सारे गिव अवे करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक रमज़ान से पहले और एक रमज़ान के बीच में ऐसा गिव अवे करूँ जिससे आप लोग भी खुश हों और मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप सब अपनी प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको याद रखूँगी। और इस चैलेंज का अपडेट आपने डेली ईशा की नमाज़ के बाद मुझे इसी वीडियो के नीचे देना है कि आप ही 500 दुरूद इब्राहीम डन, और इसके साथ-साथ आप ना छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। जितना भी आपका दिल करे, 1000 पढ़ लें, 500 पढ़ लें, आप वहाँ पर अपडेट लिख दें 500 दुरूद इब्राहीम प्लस 1000 या 500 या 200 छोटा दुरूद पाक डन। छोटे दुरूद में आप क्या पढ़ेंगे? सल्ले अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। और जितनी मेरी प्यारी सी बहनें कमेंट्स कर रही होती है ना कि आप ही हमारे साथ कोई मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहा, सबके साथ मिरेकल हो रहे हैं, तो सुने, ध्यान से पढ़ें और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें, और वो गलत काम मत करें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। एक साइड तो हम दुआ भी कर रहे होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, और जैसी हमारी नमाज़ें, हमारी दुआ मुकम्मल होती है, हम म्यूज़िक, डांस और सीरियल्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, और फिर उसी के बाद ना हम देखें गैर महरम से चैटिंग कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये उनके लिए है जो करते हैं, जो नहीं करते बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर से बात की, जो लोग आपस में शादियाँ करवाना चाहते हैं, और उन्होंने बात बंद कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम शादी के बाद ही बात करेंगे, शादी के बाद ही जो भी है हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। और देखें, मैं कहती हूँ कि ना किसी के साथ ना ऐसा रिलेशनशिप मत रखें जिससे आपको कल को पछतावा हो। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनका दिल टूट गया, बहुत सारे भाई भी ऐसे हैं जिनका दिल टूट गया, उन्हें छोड़ दिया। तो आप ऐसे काम करते ही क्यों हैं? आपको अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आप सीधा डायरेक्ट उसके लिए रिश्ता भेजें, डायरेक्ट आप उससे शादी का पैगाम भेजें। और देखिए, कमेंट आया था मुझे, वो कह रही थी कि अभी 1
मंथ हुआ है हमारे रिलेशनशिप को और लड़का शादी के लिए रेडी नहीं है, वो कहता है कि अभी मैं सोचूँगा, तो ऐसे लड़कों को छोड़ दें क्योंकि वो कभी नहीं सोचेंगे, कभी आपसे शादी नहीं करेंगे।